this form, right? Here M and P are the components of I, J, K, right? And in two-dimensional plane, the field is of this form. Now, a field this F is continuous if M and P are simultaneously continuous, right? If they are continuous simultaneously, then F is continuous. Similarly, F is differentiable if M and P are differentiable. Now, these are the examples of vector fields, right? Just like a plane, aeroplane moving in the air, then this is a vector field, right? Here, fluid is moving in the channel. Here, at each point, fluid has velocity according to the position of the point, right? And it increases as this tunnel narrows. This is the example of a gravitational field. And this is the example of a projectile motion. When a body moves along this projectile path, it has different velocities at different positions. Here, if f is some scalar function, then its gradient is a vector field. It means gradient represents the normals at each point. So this is also a vector field. Similarly, a fluid passing from the tube, it has different velocities according to the position of the particles. Right? Near the boundaries, fluid has lower velocities than in the middle. Right? In the middle, it has maximum velocity. Here, this is an example of a source, just like a bulb. Right? It represents the radiations outwards, radially outwards. And here is the example of a whirlpool, just like washing machine, fluid moving in a washing machine, or say mixture. And this is wind report for weather forecast, right? At different points, at different places, wind has different speeds. These are all examples of vector fields. Now, let f be any scalar function, then its gradient is given by this, and it is also a vector field. Now see, gradient depends upon the position of the point x, y, z, right? According to x, y, z, it has different values at different points, and h and at each point vector is attached to the function, gradient function. Is this clear? Can you find the gradient of this point? Yes, dear. Can you Yes, find the gradient of this function? Yes, sir. Yes, what is the value of this gradient? Sir, YZ I cap. y z I cap Yes, plus x x y k cap plus y z x z j cap. means this, right? 1 by 2 pi r square. 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 1 by 2 pi r square.
आपके पास स्केलर फंक्शन है तो आपने उसका ग्रेडियंट बता दिया है ना, ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हो ना अगर स्केलर फंक्शन गिवन हो हमारे पास। Yes, sir. ओके, अब ये याद रखना। और अगर ग्रेडियंट गिवन है, ये ग्रेडियंट है, तो स्केलर फंक्शन फाइंड कर सकते हो भी किस फंक्शन का वो है, ग्रेडियंट है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। Yes, sir. स्केलर फंक्शन से ग्रेडियंट फाइंड करना थोड़ा इजी है ना। ओके, let us do the work done. Work done by the force field. This is a force field, say electric field or a magnetic field or some gravitational field, right? So work done by the force field over a smooth curve, this, right? This is some smooth curve. We want to find the work done by the force field F over this curve, smooth curve. And work done is equal to the tangential component of F, integral of tangential component of F along the curve, right? This is the definition of work done. Work done is the tangential component of T represents the tangent vector like this. If F is this, then T is the tangent, right, along the curve. So work done is the integral of line integral of tangential component of F along the curve. How to calculate this? Let us see. Now here R is given, right? So GT is X, HT is Y, KT is Z, right? And T varies from A to B. So put the value of X, Y, Z in this function F, right? You get this vector in terms of T. Then what is T? It is a tangent vector. How you get T? Yes. This is the tangent vector. Rate of change of T with respect to S. Rate of change of R with respect to S. Right? So tangent vector can be represented by this. It can be written as F dot dr. Right? This can be written as F dot dr. Now, if we take dot product, then we get mdx plus ndy. Right? If F is in dimension. Here we are talking about curve in a 2D. Yes. If it is in 3D, then m dx plus ndy plus p dz, right? Next component will be there, z component. Now, we can also write this as this, right? In terms of t, because our radius vector is curve is given in terms of parameter t, right? Now you can easily calculate dr upon dt from here, from the previous slide. From here, you can easily calculate dr upon dt. Just calculate dr upon dt. M in terms of t, take their dot product and integrate with respect to t. Right? Take their dot product, and integrate the result with respect to t. You have this in terms of t now. So it is easy to integrate this expression with respect to t. T varies from A to B. Is it okay? Now, according to definition, what is work done? It is tangential component of F along the curve, right? In physics, you are calculating work done by F dot dr using this. In mathematically, we use this expression, right? This means we write F in terms of t, we take derivative of r with respect to t, then take their dot products, right?
and whatever we get that in terms of t and then integrate it with respect to t. So mathematically we use this expression. Is it okay? वर्क डन के लिए याद रखना m dx plus n dy 2d में, ये ग्रीन्स थ्योरम में काम आएगा हमारे पास, राइट? So to calculate work done mathematically, we have to use this expression. Is it okay? Yes or no? Yes, sir. Right. Let us try to calculate. Find the work done by this force over the curve this, where t varies from 0 to 1 and the curve is from origin to 1, 1, 1. But it follows this path, right? This path, this trajectory, right? Now, r is given. Can you calculate dr upon dt from here? Yes, what will be the value of dr upon dt? Sir, I cap plus Yes. 2t j cap plus 3t square k cap. Right? You get dr upon dt. Can you write f in terms of t? What is the value of x? From here, x is equal to T. just here, t. What is the value of y? T square. Z. T cube. So substitute the value of x, y, z from here in this expression, right? So we get f equal to this, dr upon dt equal to this. Just take their dot product, right? You get the expression in terms of t, then integrate it with respect to t from 0 to 1. Like this. Are you getting how to calculate the work done? Is this clear? कर सकते हो work done calculate if force field is given Yes, sir. on some curve. Next part. Now we will calculate flow. Now what is the difference between work done and flow? In work done, F is the force field, right? For work done, nomenclature for F is force field, right? Whereas for flow, F is velocity field. This is the difference only between work done and flow. To calculate work done, F is the force field, right? We use nomenclature force field for F. And for flow, we use velocity field. There, F is the velocity field, right? This is the only difference. The fluid flow by the velocity field, this, along the smooth curve, this is this, right? This is also the tangential component of F along the curve. But here, we use terminology velocity field for F. That's why this expression is known as flow, fluid flow, right? Let us calculate the flow. A fluid velocity field is this. Find the flow along this helix. Now R is given, means X is given, Y is given, Z is given, right? Substitute the value of X, Y, Z. Here you get F in terms of T. Calculate dr upon dt. Take their dot product and integrate from 0 to pi upon 2. Right, you get this as the flow. Is this clear?
Yes, sir. Now, next is circulation. What is the difference between flow and circulation? In circulation, the interval is closed, right? We are using closed loop. This is the difference between circulation and flow. So here also in circulation, we are calculating the tangential component of F along the curve. But here the curve is closed, right? If the curve is closed loop, the flow is called the circulation around the curve. Let's see. Find the circulation of the field this around this curve. What is given? R is given. If R is given, you can calculate dr upon dt. And this is x, this is y. So substitute the value of x and y here, f, in f, take their dot product, integrate, right? So this is the circulation along this closed curve. Difference clear है? Work done, flow और circulation में. Mathematical expression same है. हम टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एफ ही कैलकुलेट करते हैं तीनों में. फर्क क्या है? वर्क डन में एफ विल बी दी फोर्स फील्ड, फॉर फ्लो इट इज द वेलोसिटी फील्ड, एंड फॉर सर्कुलेशन वी आर यूजिंग क्लोज्ड इंटरवल, राइट? सर जो ये सर्कुलेशन है इसमें टी की लिमिट हमेशा 0 से 2 पाई होगी क्लोज्ड इंटरवल के कारण. ना 0 to 4 पाई भी हो सकती है, 6 पाई भी हो सकती है. ओके सर. राइट? ऐसा कुछ नहीं, वो तो कर्व पे डिपेंड करेगा ना, हम कर्व कौन सी यूज कर रहे हैं. यहां तो बाई चांस सर्कुलर है, राइट? यस सर. नेक्स्ट इज दी, ये वही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है. फ्लक्स. फ्लक्स ये डिफरेंट है वर्क डन से. वर्क डन में हम क्या कैलकुलेट करते थे? बाय डेफिनेशन दैट विल बी द वर्क डन इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग द कर्व. यही होता था ना. हियर इट इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एफ अक्रॉस द कर्व, राइट? ये ध्यान रखना है. If C is a smooth closed curve in the domain of a continuous vector field this in the plane, and n is the outward pointing unit normal vector on C, then flux of F across C will be this. Flux is the normal component of F, right, across the curve. Now, what is N? N is the outward pointing unit normal vector. ये से ही हमारे पास जब वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं along the curve, right? This is the tangential component. N जो होगा वो नॉर्मल कंपोनेंट है, right? N is the normal component. This curve is in the XY plane. तो जो आउटवर्ड होगा यहां से बाहर को आएगा स्क्रीन से, वो कौन सा होगा? That will be K vector, right? X vector, Y vector, K vector. तो K vector बाहर की तरफ आएगा. T, N, और जो बाहर को आएगा तीसरा नॉर्मल, that will be K. This is the flux, right? It is the normal component of F. कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स को अब? Yes. वहां तो dr था, तो dr अपॉन dt हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते थे, राइट? सर्कुलेशन के लिए. फ्लक्स के लिए n गिवन है, तो सबसे पहले n को हम
टी क्रॉस के की फॉर्म में लिखेंगे, राइट? एन टी के आर ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, राइट? एफ टी और एन एक ही फ्रेम में है, एक्स वाई प्लेन में, के आउटवर्ड है, तो एन क्या होगा? टी क्रॉस के, राइट? और उसके बाद टी, व्हाट इज टी? डी आर अपॉन डी। टेक दियर डॉट प्रोडक्ट, पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, राइट? जो भी रिजल्ट आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट, यू गेट दिस एम डी वाई माइनस एन डी एक्स, राइट? पर हमें टी की फॉर्म में चाहिए, हम क्या करेंगे? डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी कैलकुलेट करेंगे, एक्स और वाई को टी की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट? देन इंटीग्रेट करेंगे हम। इज इट ओके? मैथमेटिकली फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करोगे? जो बाय डेफिनेशन है फ्लक्स, दैट विल बी द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग अक्रॉस द कर्व, राइट? बट मैथमेटिकली क्या करोगे? डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स और वाई को टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे और इसे इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, राइट? लेट अस सी एन एग्जांपल. Find the flux of this across the circle this. Now, parametric form of this circle. इस बार सर्कल इस फॉर्म में दिया हुआ है हमें, राइट? तो सबसे पहले तो हमें इसे पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है, वन पैरामीटर में. Here, what is the radius of this circle? 1. 1. Then what is x? 1 cos theta, y is 1 sin theta, right? So you get x equal to cos theta, y equal to sin theta. And for circle, t varies from, theta varies from 0 to 2 pi, right? So this is our r. This is our x, this is y, just substitute the value. dy upon dt, dx upon dt कैलकुलेट करोगे यहां से, राइट? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और इसे इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t. और मैंने यहां मिस कर दिया t, राइट? तो इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, यू गेट आंसर 5. इज इट ओके? सर दोबारा बता दो एक बार, लास्ट वाला फ्लक्स. यहां तक क्लियर है? सर इससे ऊपर वाली लाइन तक क्लियर है. ये क्लियर है, ये वाला पार्ट, यस सर. राइट? ये देखो, ये फ्लक्स ये होता है ना हमारे पास, राइट? एन इसके इक्वल होता है एक्चुअली टी क्रॉस के. व्हाट इज टी? डी आर अपॉन डी टी लिख सकते हैं इसे, डी आर अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी एस, रेट ऑफ चेंज ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, राइट? ये लिख दिया हमने. इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया के के साथ, कैलकुलेट कर दिया. जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वी गेट दिस वैल्यू, राइट? दिस कैन बी रिटन एज, जब डॉट प्रोडक्ट इनका यूज करोगे, राइट? एफ डॉट दिस, यू गेट दिस वैल्यू, और इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. यहां तक क्लियर है? यस सर. इसके बाद क्या करेंगे हम? डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी टी कर देंगे. यहां मतलब ये जो एस है ना, यहां टी लिख देंगे हम. ये डी एस से किया हुआ ना हमने, हम क्या करेंगे? डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी टी, राइट? तो डी वाई अपॉन डी टी तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना यहां से, आर से. यस सर. आर हमारे पास गिवन है, तो दिस इज एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी टी कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज वाई, डी वाई अपॉन डी टी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? वो यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी सब्स्टिट्यूट करोगे और इसे इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, राइट? और ये जो एम एक्स वाई है, यहां से आ जाएगा एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ टी सब्स्टिट्यूट कर दोगे,
x और y की वैल्यू, right? You get f in terms of t. Means this is our m, this is n, right? तो m dy upon dt minus n dx upon dt कैलकुलेट कर लोगे, you get cos square t, और इसे इंटीग्रेट कर दोगे with respect to t from 0 to 2 pi, right? Yes, sir. तो इसलिए आपको फ्लक्स के लिए याद रखना है m dy minus n dx, m dy minus n dx, और जबकि वर्क डन के लिए था m dx प्लस n dy। जब वर्क डन करते हैं m dx प्लस n dy, बस उसी को t की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। जब फ्लक्स है m dy माइनस n dx को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट। Now next is path independent and conservative field. Path independent कब होंगे? When we get same result from different paths, right? जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल किया था, let us see, line integral. कैलकुलेट किया था ना हमने, line integral of f along this path, we get result 0. जब हमने इस पाथ के along कैलकुलेट किया था रिजल्ट, इस पाथ के along we get this value, तो रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है ना इस केस में। जब हम इस केस के along f को कैलकुलेट कर रहे हैं, we get this as the result, right? और जब इस पाथ के along कैलकुलेट कर रहे थे डायरेक्ट, we get 0 वैल्यू। इसका मतलब this depends upon the path, ये जो कैलकुलेशन लाइन इंटीग्रल है, it depends upon the path, right? क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज आ रही है डिफरेंट पाथ के along, so this is path dependent। अगर सेम रिजल्ट आ रहा होता, हम किसी भी वे से, यहां से, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, किसी भी वे से यहां से पहुंचे यहां तक और रिजल्ट सेम आए, देन इट विल बी पाथ इंडिपेंडेंट, राइट? मींस जब इस इंटेग्रल की वैल्यू, दिस इज वर्क डन बाय द फोर्स फील्ड एफ, राइट? अगर वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, एंड इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, और अगर इंडिपेंडेंट पाथ हो, देन एफ इज कंजर्वेटिव, फील्ड इज कंजर्वेटिव। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, दे आर कंजर्वेटिव, या जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इट इज कंजर्वेटिव। करते हो ना आप फिजिक्स में? है याद या नहीं? Yes, sir. फिजिक्स में करते हो ना, वर्क डन कैलकुलेट करते हो। ये वर्क डन के लिए फॉर्मूला है एफ डॉट डी आर मीन्स, तो जब इसकी वैल्यू पाथ से इंडिपेंडेंट हो, मीन्स सेम रिजल्ट शो करे, हम कोई पाथ फॉलो करें फ्रॉम ए टू बी, राइट? और पाथ से इंडिपेंडेंट हो, वी गेट, it means that this field is conservative, right? F is conservative. Now, under differentiability condition, a field is conservative if and only if the gradient field of a scalar function f, if it is the gradient field of a scalar function f, means f ये जो है कैपिटल F, ये कंजर्वेटिव तभी होगा अगर कोई ना कोई स्मॉल f एग्जिस्ट करे। जो है कैपिटल F इस फंक्शन का ग्रेडियंट हो। इज इट क्लियर? मीन्स इस फंक्शन का अगर हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करें, वो इसके इक्वल आए, राइट? ये स्मॉल फंक्शन का हमने कैलकुलेट किया ग्रेडियंट, वो इस फील्ड के इक्वल आए, इट मींस दैट दिस फील्ड इज कंजर्वेटिव।
आया समझ या नहीं? मीन्स अगर फील्ड के लिए हमारे पास कोई ना कोई ये स्मॉल एफ है जिसका ग्रेडियंट इस फील्ड के इक्वल है, इसका मतलब फील्ड कंजर्वेटिव है. मीन्स फॉर एवरी फील्ड देयर मस्ट एग्जिस्ट सम एफ such that gradient of this f is equal to this field. Then this field is conservative. Is this clear? Yes or no? ये समझ आया या नहीं? When the field is conservative. ये जो स्मॉल एफ है दिस इज नोन एज पोटेंशियल फंक्शन. ये फंक्शन था ना हमारे पास, ये हमने अभी एग्जांपल किया था. ये फील्ड है हमारे पास, ये फील्ड है ना, कोई वेक्टर फील्ड है ये. राइट? यस सर. और कोई ना कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसका ग्रेडियंट अगर फाइंड करें तो इसके इक्वल हो इस फील्ड के. है कोई फंक्शन? यस सर. कौन सा? एक्स वाई जेड. ये आपको क्लियर है ना भी? ये फील्ड जो है इस फंक्शन का ग्रेडियंट है ना. मींस अगर कोई फंक्शन f एग्जिस्ट करता है जिसका ग्रेडियंट इस फील्ड के इक्वल है, देन दिस फील्ड इज कंजर्वेटिव. राइट? तो जरूरी नहीं होता हर एक के लिए कोई ना कोई फंक्शन एग्जिस्ट करे, लेकिन अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है और उसका ग्रेडियंट फील्ड के इक्वल है, देन दैट फील्ड इज कंजर्वेटिव. राइट? और अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है इस तरह का जिसका ग्रेडियंट इसके इक्वल हो, राइट, देन दिस फंक्शन इज नोन एज पोटेंशियल फंक्शन. राइट? तो यहां पर पोटेंशियल फंक्शन क्या है हमारे पास? एक्स वाई जेड. फिजिक्स में आप पोटेंशियल फंक्शन की जगह यूज करते हो वर्ड पोटेंशियल. करते हो कि नहीं यूज? यस सर. मींस पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. करते हो ना? कैलकुलेट करते हो कि नहीं फिजिक्स में? याद करो. जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वहां पर? दैट विल बी वर्क डन. जब आप वर्क डन कैलकुलेट करते हो ना फ्रॉम ए टू बी, क्या करते हो? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दोनों में पोटेंशियल फाइंड करते हो और उनका जो डिफरेंस है दैट विल बी वर्क डन. याद है कि नहीं आपको? यस सर. यही करते हो ना? लेकिन वो जो एक्चुअल में पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो ना आप, वो फिजिक्स में पोटेंशियल वर्ड यूज करते हैं. मैथमेटिकली पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू होती है वो. एक्चुअली आप पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हो पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, और उनका डिफरेंस जो है दैट विल बी वर्क डन. जैसे ये पोटेंशियल फंक्शन है, इसका पॉइंट ए पर कोई वैल्यू होगी, पॉइंट बी पर कोई वैल्यू होगी, अलग अलग पॉइंट्स पर वैल्यू होगी ना इसकी. जो वैल्यूज का डिफरेंस है दैट विल बी पोटेंशियल, दैट विल बी वर्क डन. तो वर्क डन हम कैसे कर? अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो सिर्फ हमें पोटेंशियल फंक्शन फाइंड कर लेना है उसका. ये पोटेंशियल फंक्शन है, इसकी वैल्यूज अगर दो पॉइंट ए एंड बी पे जो आएगी उनका डिफरेंस जो है वो वर्क डन शो कर देगा अगर फील्ड कंजर्वेटिव है. राइट? ये देखो आगे करते हैं. सर वहां पे जब पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव में तो माइनस साइन भी यूज करते हैं सर फील्ड के लिए. मैं भी बताता हूँ. पोटेंशियल फंक्शन क्या होगा? ये जो एफ है, स्मॉल एफ. राइट? इफ एफ इज ए फील्ड डिफाइंड ऑन डी and f is equal to this,
for some scalar function f, then f is known as the potential function. वहां आप सिर्फ उसे पोटेंशियल बोल देते हो. ये है. Is the work done? Right? If the field is conservative, ये जो पार्ट है इसे ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ f एट b, f एट a. इन दोनों का जो डिफरेंस होगा फंक्शन की वैल्यूज जो होंगी a और b पे, उनका जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? और उसे हम वर्क डन बोलते हैं फ्रॉम a टू b. आप कह रहे हो नेगेटिव साइन यूज करते हो, वो बाय कन्वेंशन और कुछ नहीं है, ठीक है ना? 0 to infinity वाला केस होता है ना हमारा. यस सर. हाँ, उस केस में इसलिए नेगेटिव वन यूज करते हैं. वैसे फंक्शन जो पोटेंशियल फंक्शन है, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है, दिस इज वर्क डन, अगर फील्ड एफ ये वाला कंजर्वेटिव है, राइट? इसका मतलब ये किसी ना किसी पोटेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव है, राइट? तो यस सर. फंक्शन फाइंड कर लेते हैं एफ, जो पॉइंट्स पे वैल्यू है फंक्शन की अलग अलग पॉइंट्स पे, उनका जो डिफरेंस है दैट विल बी वर्क डन. पोटेंशियली. ये सिर्फ उसी केस में है व्हेन एफ इज कंजर्वेटिव, राइट? क्योंकि अगर कंजर्वेटिव है तो ये हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते होते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ, राइट? और ये क्या, ये डेरिवेटिव कर रहे हैं, यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ एफ बचेगा हमारे पास. तो एफ हम कैलकुलेट कर देते हैं बी और ए पे. ये समझ आया कि नहीं? यस सर. ये डेरिवेटिव को शो करता है, ये हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो मींस डेरिवेटिव, ये एंटी डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, सिर्फ एफ की वैल्यू बी और ए पे रहेगी फॉर कंजर्वेटिव. ये कुछ assumptions है हमारी. हम मान के, अब जो भी हम रीजन मानेंगे, हम ये मान के कर्व्स मानेंगे, ये मान के चलेंगे ऑल द कर्व्स आर पीस वाइज स्मूथ, राइट? मींस अगर स्मूथ नहीं है कर्व तो पीस वाइज स्मूथ है वो, मींस डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा उनका. हो सकता है फाइनाइट पॉइंट्स पे वो डिफरेंशिएट ना करें, पर वो पीस वाइज करेंगे. द कंपोनेंट्स ऑफ एफ हैव कॉन्टिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स. जो भी हम एफ यूज कर रहे हैं, फील्ड यूज कर रहे हैं, उनके जो कंपोनेंट्स हैं, उनका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा. जो रीजन है हमारा वो ओपन होगा और कनेक्टेड होगा, ठीक है? ये अजम्पशंस है हमारी. अब ये अज्यूम करके चल रहे हैं, जिस फील्ड की बात कर रहे हैं हम और जिन कर्व से की बात कर रहे हैं, उन फील्ड में कर्व स्मूथ होंगी, एफ जो है उनका कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव होगा, रीजन जो है वो ओपन होगा और कनेक्टेड होगा. ये मैं आपको समझा दूंगा वन बाय वन. और रीजन सिंपली कनेक्टेड होगा. बस करें आज? यस सर. चलो ये कर लो सिर्फ एक. फाइंड द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड दिस along any smooth curve joining the point this to this. कर सकते हो कैलकुलेट वर्क डन? अब ये क्लियर है, ये कंजर्वेटिव फील्ड है, ये दिया हुआ एग्जांपल में है ना, विच, तो ये इसका पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो, इस फील्ड का पोटेंशियल फंक्शन जिसका ग्रेडियंट इसके इक्वल हो. क्या होगा पोटेंशियल, वो पोटेंशियल फंक्शन एक्स वाई जेड होगा ना. तो जस्ट आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है फ्रॉम ए टू बी. क्या करोगे, उस फंक्शन की वैल्यू बी पे और ए पे कैलकुलेट कर लोगे, उनका डिफरेंस कर दोगे, दैट विल बी वर्क डन. ये आ गया एफ एट बी, एफ एट ए. एफ क्या है हमारे पास, एक्स वाई जेड, राइट? तो ये आ गया सीधा वर्क डन. मींस जब फील्ड कंजर्वेटिव है और हमें ये पता लग जाए उसका पोटेंशियल फंक्शन, तो हमारे लिए काफी इजी हो जाती है कैलकुलेशंस, राइट? ये देखो, ठीक है कि नहीं? तो अगर सबसे पहले ये चेक करना होगा हमें, जो फील्ड गिवन है वो कंजर्वेटिव है या नहीं है.
अगर कंजर्वेटिव है तो उसका पोटेंशियल फंक्शन फाइंड कर लेंगे। अगर पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करने में हम कामयाब हो गए, राइट, तो वर्क डन इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर? तो वो कल करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट। लेट मी टेक योर अटेंडेंस।